لائن میں خوش آمدید۔ احتشام احمد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بہت ہی ایک مشہور ڈرامہ سیریل ترکی کی طرف سے پاکستان کے اندر کافی عرصے سے دکھایا جا رہا ہے، اب شاید اس کا کوئی تیسرا، چوتھا یا پانچواں سیزن جو ہے نا چل رہا ہے، اور اس ڈرامے کے اندر کسی بھی جو قوم کی ایک بلڈ لائن دکھائی گئی ہے، اس کی دوسری نسل کا جو ہے نا اب وہ دوسری نسل چل رہی ہے اور اس کی دوسری نسل کی فتوحات وغیرہ دکھائی جا رہی ہیں۔ میں جس ڈرامے کی بات کر رہا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں، اور شاید آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کافی عرصے سے 2012 میں یا 14 میں شاید شروع ہوا تھا، تب سے فالو کر رہے ہوں اس کو۔ ارطغرل غازی کے نام سے ترکی ڈرامہ سیریل جو ہے نا وہ دکھایا گیا، ان کی جو کہہ لیں کہ مسلمانوں کی ایک عظیم جو ہسٹری تھی ان کی، دا گریٹ آٹومنز جن کو کہتے ہیں، خلافت عثمانیہ کے نام سے ہم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، اصل میں تھے کون ارطغرل غازی، اور یہ عثمانی جو خلافت تھی یہ کون تھے، کون لوگ تھے، کہاں پہ ان کی سلطنت شروع ہوئی، کس طرح سے انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے نا راج کیا تھا 14ویں اور 16ویں صدی کے نصف جو تاریخی حصہ ہے اس کے اندر کافی دنیا کے اندر ان کا اثر و رسوخ تھا، اور انہوں نے دنیا کے اوپر راج کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا اب ان کے جو ڈرامہ سیریل ہے اس کو دکھانے کے ساتھ ساتھ کیا انفلوئنس ہے ان کی جو ہے نا دیکھنے سے ہماری نوجوان نسل پر اثر کیا پڑ رہا ہے، یا جو بھی ہے وہ سارا کچھ دیکھیں گے۔ تو سلجوقی سلطنت ترکی کے اندر جب جو ہے نا 14ویں صدی شروع ہو رہی تھی 1299 کے اندر، بالکل اینڈ کے اوپر جب ان کا ایک جو ہے نا ڈکلائن شروع ہوا تھا، تب ایک ارطغرل کے نام سے ایک انسان جو ترکی کا تھا، وہاں پہ اس کے بارے میں نے تاریخ کو بہت پڑھنے کی کوشش کی ہے، شاید آپ لوگوں کو مل جائے، مجھے نہیں ملی۔ صرف اتنا جو ہے نا تاریخ کے اندر ملتا ہے، بڑی بڑی کتابیں آپ لوگ سرچ کر رہے ہیں گوگل کے اوپر، ویکیپیڈیا، کوئی بھی سورس آپ ایون یوز کر لیں، اس شخص کے بارے میں صرف اتنا ملتا ہے کہ جو ہے نا سلجوقوں کے ڈکلائن کے وقت ایک شخص تھا جو اپنی جو ہے نا قوم یا قبیلے کو لے کر ایک اچھی سی جگہ شاید ترکی کے اندر جو ہے نا ڈھونڈ رہا تھا، تاکہ وہ وہاں پہ کچھ ایک بستی قائم کر سکے جہاں پہ اس کا قبیلہ جو ہے رہائش پذیر ہو سکے، اس کے بعد کے جو حالات ہوں گے ان کو فیس کیا جا سکے، کیونکہ اس ٹائم جنگی ماحول اور یہ گھوڑے تلواریں جو کہ دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر، تو اس طرح کا ایک ماحول تھا۔ اس سب کو جو ہے نا وہ شاید ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے قبیلے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے زیادہ کوئی ہسٹری نہیں ملتی۔ اب جو ہے نا اس کا جو میں نے کہا بلڈ لائن میں دوسرا حصہ جو یا دوسری نسل دکھائی جا رہی ہے، وہ ہے ڈرامے کا نام تو میرے خیال میں قرلس عثمان کے نام سے ہے۔ تو عثمانی سلطنت عثمانیہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اصل میں جو ریاست وہ شروع ہوئی تھی 14ویں صدی کے بالکل شروع کے اندر، وہ تھا عثمان، اور عثمان کے بھی 3 سے 4 جو ہے نا نسل کے اندر وہ چلے تھے۔ عثمان فرسٹ، اب یہ جو دکھا رہے ہیں شاید اسی کی ہسٹری ہو، عثمان سیکنڈ بھی تھا، تھرڈ تک کی ایک اچھی خاصی ہسٹری ملتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کے سارے ارطغرل کے رشتہ دار تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دنیا کے اندر راج کیا، اور دنیا کے کون کون سے وہ حصے تھے اس کے اندر، افریقہ کے کچھ نارتھ حصے شامل تھے، ساؤتھ ایسٹ یورپ جو تھا اس کے اندر بھی اچھے طریقے سے یہ قابض ہو چکے تھے، کچھ جو ہے نا ایشیا کا حصہ بھی ان کے پاس تھا جہاں پہ یہ راج کرتے رہے تھے۔ اب ارطغرل غازی جو ہے ان کو ڈرامہ سیریل بنا کے دکھایا گیا، اور ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے باقاعدہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ اس کو جو ہے نا ٹیلی کاسٹ کرنے کا ایسے سمجھے حکم دیا تھا۔ ان کے جو اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر ان کی اتنی کیوں تاریخ آخر بتائی جاتی ہے، اور ہم لوگ اتنے کیوں انفلوئنسڈ ہیں۔ یورپی جو مین علاقے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، ویانا آ جاتا ہے اس کے اندر، ہینگری ہے، گریس جو علاقے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، افریقہ اس کے اندر جو ہے نا مڈل ایسٹ والے علاقے آپ لوگ ایشیا کے اندر دیکھ لیں، ان میں عراق تھا، سیریا تھا، اسرائیل، ایجپٹ، افریقہ کے الجیریا جو، اور اس کے بعد لارج عربین پیننسولا جو ہے پورا، جس کے اندر ابھی سعودی عربیہ یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہاں تک ان کی جو ہے نا سلطنت عثمانیہ پھیلے ہوئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ میں ان کے اوپر اس قدر بات کیوں کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک ایسے جو ہے نا شخص کے ڈرامے کو یا سیریل کو باقاعدہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ایک باروڈ کلچر کو لا کے ہمارے کلچر میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی کب 2022 کے اندر، جبکہ آپ لوگ دیکھ لیں 21ویں صدی کا جو ہے نا وہ اب مڈ چل رہا ہے، یا ایک دنیا جو ہے نا ہائیڈروجن بم کی طرف جا رہی ہے، اور ہم لوگ اپنی ہسٹری، اپنے مسلمانوں کی جو گریٹنس ہے وہ یاد کر رہے ہیں کہ گھوڑوں پہ اوپر بیٹھ کے تلواریں لے کے وہ لوگ جو ہے نا، ہم لوگ اس کلچر کو آگے لے کے شاید پتہ نہیں اب اسرائیل جیسے ممالک یا جو بڑی بڑی دنیا کی اکانومیز ہیں
मेरे ख्याल में घोड़ों के ऊपर जो है ना कोई हाइड्रोजन बम रख के शायद उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, और इस तरह से जो है ना हम अपने एक ग्रेट जो है ना मुस्लिम एम्पायर या मुस्लिम वर्ल्ड के एक बहुत ही जो ठेकेदार बनते रहते हैं, शायद वो हम लोग इस चीज़ से हासिल कर सकेंगे या इस सीरियल से। तो अर्तुगरुल गाजी जिस सीरियल की हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है, अब वो टेलीविज़न सीरियल है उसकी ब्लड लाइन में दूसरा जो है ना नस्ल दिखाई जा रही है, और गालिबन 5वें या चौथे सीज़न के अंदर ये एक शख्स उस्मान के नाम से, कुर्लुस उस्मान उस ड्रामे का नाम अब हो चुका है, जो पहले अर्तुगरुल गाजी हुआ करता था। लेकिन है ये जो है ना वही एक ही जो ड्रामा सीरियल है उसी की नस्ल अब आगे चल रही है। अब इस के बारे में भी थोड़ी सी तारीख मिलती है कि 1258 में ये शख्स जो है ना पैदा हुआ था, उसके बाद 1323 के अंदर इसकी जो है ना डेथ हो गई थी। यानी कि उस्मान जो अर्तुगरुल है उसके कुछ ही अरसे के बाद जैसे ही उसने कबीला अपना सेट कर लिया था कहीं के तुर्की के अंदर किसी भी जगह पे, तो एनाटोलिया का जो इलाका था वहाँ पे उसने सेट कर दिया था। उसके बाद जो सारा उनको जो है ना ऑटोमन्स ग्रेट या जो एक एम्पायर खड़ा करना था वो उस्मान ने किया था। इसके हिस्ट्री जो है ना वो थोड़ी सी मिलती है आप लोगों को। जो हलीमा सुल्तान इसकी वालिदा या अर्तुगरुल की जो बीवी दिखाई गई है इस ड्रामा के अंदर, इसकी भी हिस्ट्री सिर्फ इतनी मिलती है कि अपने बेटे की जो उन्होंने परवरिश की थी, 8 साल की उम्र से डेली बेसिस पे कोड़े भी मरवाए जाते थे इस शख्स को, और उस टाइम की जो अच्छी से या बेहतरीन किस्म की जो जंगी तालीमात या एक्सरसाइजेज़ वगैरह होती थी वो 8 साल से ही उसको जो है ना देना शुरू करवा दिया था उसकी माँ ने। इसीलिए शायद 19 साल की उम्र से इस बंदे ने जो है ना कमांड संभाल ली थी तुर्कों की, और ऑटोमन एम्पायर जो है ना वो एक फुल फ्लैज दुनिया के नक्शे पे उभरना शुरू हो गया था। 16वीं सदी के अंदर इनके जो ख़ानदान थे उन्होंने बिल्कुल अपने जो तमाम तर ये आप लोग मिडल ईस्ट के एरियाज़ देख लें, सऊदी अरेबिया, इसराइल वगैरह, ये सब यहाँ पर इनकी ही हुकूमत हुआ करती थी। उसके साथ जो है ना आप लोग यूरोपियन काफ़ी इलाके देख लें, क्योंकि अभी भी इनको यूरेशिया ही कहा जाता है। तुर्की जो है आधा यूरोप और आधा शायद एशिया के अंदर है, वहाँ पे भी इसकी हुकूमत अच्छी, और उसके साथ अफ्रीका के जो इलाके हैं काफ़ी सारे वो भी बहुत जो है ना, यानी कि 16वीं सदी और 17वीं सदी जो थी इनकी वो बहुत ही आप लोग कह रहे हैं कि पीक लेवल के ऊपर इनकी जो है ना हुकूमतें पूरी दुनिया के अंदर और फतूहात वो बिल्कुल कर चुके थे, और एक इस्टेब्लिश्ड जो एम्पायर था ऑटोमन्स का वो दुनिया के नक्शे पर मौजूद था। अब बात यह है कि उनकी जो है ना घोड़ों की तारीख हमें क्यों दिखाई जा रही है, हम लोग उनके ख़ानदान के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। बात यह है कि आप लोग अपने जो बड़े सगीर के अंदर कितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हम लोग ना। आज तक कोई इस तरह का सीरियल शायद 1-2 जो है ना पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर टीपू सुल्तान के अबाउट दिखाया गया था। अब टीपू सुल्तान से याद आ गया कि उनके साथ भी जो है ना खिलाफत उस्मानिया ने जो रवैया इख्तियार किया वो भी आपको बताता चलूँ। यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके कंपनी से एक ब्रिटिश एम्पायर की तरफ जो है ना खड़ा करने वो जा रहे थे, तो उनको सबसे पहले जो मुस्लिम बाकायदा रेजिस्टेंट थी वो यही शख्स टीपू सुल्तान था। पहले इसके वालिद हैदर अली ने भी काफ़ी सारी रेजिस्टेंट की, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी की साजिश की वजह से जो है ना मरवा दिया गया था। उसके बाद जब ये जो है ना टीपू सुल्तान जिसके अर्तुगरुल गाजी और ये उस्मान के ख़ानदान से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, तब उसने एक ख़त लिखा था, जी हमें जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे बरतानवी तसल्लुत कायम करना चाह रही है और इस हवाले से उनको जो है ना आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया था, उसके साथ वो ख़त ब्रिटिश एम्पायर को जाके दिखा दिया था, ये देखें ये तो आपके ख़िलाफ़ जो है ना कॉन्स्पेरेंसी करने जा रहे हैं, ये आपके ख़िलाफ़ बगावत करना चाह रहा है, ये शख्स जो है ना आपके लिए और आपके जो बरतानवी जो शाहाना एक जो निज़ाम आप लोग कायम करने जा रहे हैं, जो आपकी शान व शौकत है उसमें तो ये गुस्ताखी कर रहा है। तो उसके बाद 1799 के अंदर जो जंग पलासी हुई थी आखिरी, उसके अंदर इसको भी जो है ना वो शिकस्त हो गई और उनको दौरान जंग ही शहीद किया गया था। और जो हाल उनके साथ किया गया था 4 दिन तक जो जैसे लाश पड़ी रही थी, ये सारा कुछ भी हमारे सामने है। तो ये हमारे जो है ना एक कह लें कि हम लोग जिनके पीछे खड़े हुए हैं, जिनका कल्चर हम लोग ये शो करवाते हैं कि हमें जो है ना मुस्लिम जो असल तारीख़ है या जो मुसलमानियत हमारे अंदर शायद जागती है वो सिर्फ तुर्कों के जो ईरानियों के या इराक़ के अंदर जो लोग मौजूद हैं और जो खुद जो है ना पता नहीं किस तरह से अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अब आगे चलते जाएं, आप लोग देखें कि
पहली जंग अजीम आ जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि तुर्कों को वही ब्रिटिश जिनके ये इतने ज़्यादा मतलब हमारे ख़त उठा उठा के देख रहे थे, उनको दिखा रहे थे, इनको उन्हीं बरतानवियों ने जो है ना शिकस्त दे दी उनके अंदर। उसके बाद जो है ना कमाल अतातुर्क ने 1924 के अंदर खड़े होकर ये कह दिया कि जी हमें खिलाफत चाहिए ही नहीं, हमें ना सऊदी अरेबिया चाहिए, ना ही जो है ना इसराइल के अंदर जो या यरूशलेम के अंदर मुक़द्दस मकामात हमारे जो मौजूद हैं क़िबला अव्वल जिनको हम लोग कहते हैं, ना ये हमें चाहिए। हमें अपना जो है ना मॉडर्न जो अब तुर्की है वो हमें चाहिए। हम लोग उसके अंदर जिस तरह से चाहेंगे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। आप लोगों का हमारे अंदर ये जो अमल दखल या जिसके ऊपर जो पूरी जंगें हुई हैं, या हमें ये खिलाफत बिल्कुल नहीं चाहिए। उस टाइम में भी क्या हुआ, बर सगीर के जो मुसलमान थे, हमारे जो मुसलमान थे, इन्होंने क्या शुरू कर दिया, एक पूरी तहरीक चला डाली कि जी हमें खिलाफत चाहिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, हम तो खिलाफत उस्मानिया और इसके बगैर तो रह ही नहीं सकते। अब उनको चाहिए नहीं और हम लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं, पूरी तहरीक चला डाली जी। तो हम लोगों ने जो है ना पूरी एक तहरीक चलाई यहाँ के मुसलमानों ने कि जी हमें खिलाफत चाहिए, आप लोग खिलाफत रखें, हमारे तो मुक़द्दस मकामात हैं, मक्का है, मदीना है, यहाँ से जो है ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई जो है ना ख़त और पूरा एक जो है ना ग्रुप अपना लेके वहाँ पे पहुँच गया सऊदी अरब के अंदर कि जी ये आप लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे तो मुक़द्दस मकामात हैं, इसराइल हमसे जो यरूशलेम है वो छीन जाएगा, मक्का मुकरमा और मदीना पाक है वहाँ पे, ये आप लोग गलत कर रहे हैं। तो वहाँ के जो उस टाइम के बादशाह थे या जो बनने वाले थे, अभी फैसला हो रहा था उनका, तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई होगी, इनको जो है ना वहाँ से भगाया होगा, भगाया ही था कि जी आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हमसे, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आप लोग आप जो है ना वापस जा सकते हैं, हमने जो करना है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी जो पहले सऊदी शहज़ादे या बादशाह थे, उन्होंने यही कहा था कि जी हमें तो हमारा सऊदी अरेबिया चाहिए, और कमाल अतातुर्क ने ये कहा था कि हमारा तुर्की जो है ना हमें बिल्कुल ठीक है, हम लोग खिलाफत बिल्कुल नहीं रखना चाहते। लेकिन हम लोग जो है ना, हमें ये शौक़ होता है कि हम लोगों ने ठेका लेना है इस्लाम का। ठीक है हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोग ऐसे मुसलमान हैं जो कि 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें जो है ना वो मुसलमानों के नाम के ऊपर, उनकी तारीख़ के ऊपर अगर कोई इंसान बात कर दे तो हम लोग उसका जीना भी हराम कर सकते हैं, उसको जो है ना मारने तक भी, उसको हिलाल भी और फतवे भी काफ़ी सारे उसके ख़िलाफ़ या उसके हक़ में निकाल सकते हैं। तो बात यह है कि हम लोग अब इस दौर के अंदर दूसरों की जो है ना हिस्ट्रियाँ उठा के दिखाएंगे, दूसरों के कल्चर जो है ना बारो करके ये कहेंगे कि जी देखें ये हैं मुस्लिम। शायद तुर्की के जो ऑटोमन्स थे वो पाकिस्तानी होंगे, यहीं से पहले गए होंगे, वहाँ जाके इतनी बड़ी सल्तनतें कायम की होंगी, इसलिए हमारा देखना बिल्कुल जो है ना जायज़ है। अब हमें ये चाहिए कि अर्तुगल गाज़ी और ये जो कुर्लुस उस्मान है, इसको देखने के बाद घोड़ों पे चढ़ना चाहिए, तलवार लेके आप लोग चढ़ जाएं पूरी दुनिया के ऊपर और जो है ना काबिज़ हो जाएं, आप तो बहुत ग्रेट हैं। तो ग्रेट ऑटोमन्स एम्पायर जैसे था, आप ग्रेट पाकिस्तानी एम्पायर जो है ना आप लोग बना दें घोड़ों के ऊपर चढ़ के। तो ये हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम क्या एक माशरे के अंदर जब दुनिया जो है ना हाइड्रोजन ट्रेनें चला रही है, जर्मनी के अंदर लोग हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, कोई जो है ना चाँद पे जाके कुछ कर रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है, और हम लोग क्या करते हैं नेशनल टेलीविज़न पे बच्चियों को बिठा के। अब कुर्लुस उस्मान की एक किस्त आप देख लें, 2 घंटे और 25-20 मिनट की है। तो वो टाइम अगर हम लोग इफ़ेक्टिव कामों के अंदर लगा दें, कोई अच्छा काम करने के लिए जो है ना आप लोग सोच लें, हमारे जवानों को इस बहस से, इन चीज़ों से और उनके स्टेटस लगवाने से जो है ना आप लोग अगर हटवा दें, तो कल को शायद उनके बेचारों के इस वजह से भी जज्बात हर्ट नहीं होंगे कि जब उनके इंस्टाग्राम और जो है ना फेसबुक के अकाउंट्स खोलते हैं तो उनका भाई जो अर्तुगल है और जो उनकी बहन हलीमा, वो तो पेट निकाल के जब बैठी होती है तो इन बेचारों को बड़ा दुख लगता है कि जी हाँ ये तो हमारे अलम बरदार थे, हम तो इनके पीछे खड़े थे, हम लोगों ने इनको जो है ना आइडियलाइज़ किया हुआ था, ये तो गलत कर रहे हैं। उनके अकाउंट्स पे जाके ऐसे कमेंट भी नहीं करेंगे, इनकी जहनीत थोड़ी चेंज होगी, इफ़ेक्टिव कामों के अंदर जो है ना अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। तो ये सारा कुछ था। अब बाकी फ़ैसला तो आप लोगों ने खुद करना है कि अभी भी बैठ के टाइम इनके ऊपर वेस्ट करना है, या फिर जो है ना अपने खुद के कुछ इफ़ेक्टिव काम और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, इस बहस से निकलना है, इन चीज़ों से निकलना है। बातें शायद आप लोगों को अच्छी ना लगी हों, लेकिन जो है ना सीरियस बातें आजकल सुनता भी कोई नहीं है। अगर हमारी बात आप लोगों ने सुननी है तो पेज को लाइक भी कर दीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा, और जो है ना शेयर करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बातें आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही रूखी और सीरियस किस्म की मिलेंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।